السلام علیکم۔ آئیے سیدھے ہم اپنے مقصد کی طرف ہی چلتے ہیں۔ آپ لوگ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا مرثیہ کے اجزاء ترکیبی میں پوائنٹ نمبر 7واں کیا ہوتا ہے؟ 7واں پوائنٹ ہے شہادت کا۔ پیچھے جو 6 ٹاپک آپ نے دیکھے، لیکن 7واں ٹاپک اجزاء ترکیبی میں کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں جو شاعر جو ہیں وہ شہادت کے بارے میں، مجاہدوں کی شہادت کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ تو 7واں کیا ہے؟ شہادت۔ شہادت کے معنی اور جو بھی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں گا، میننگز لکھے ہوئے بھی ہیں، لیکن پہلے ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ مجاہد کا بہادری کے ساتھ جنگ کرتے کرتے دشمنوں کے نرغے میں گھر جانا۔ کہاں گر جانا؟ دشمنوں کے نرغے میں گھر جانا، مجروح ہونا اور آخرکار معبود حقیقی سے جا ملنا۔ آخرکار معبود کہا گیا ہے یہاں، یہ بھی میننگ بتا دیا جائے گا۔ معبود حقیقی سے جا ملتا ہے، یعنی جام شہادت نوش فرمانا، جام شہادت کا جام کو پی لینا۔ میننگ آئیں گے، بتاتا ہوا چلوں گا۔ مرثیے کے اس جز کے تحت آتا ہے۔ کون سے جز کے تحت آتا ہے؟ شہادت کے تحت آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرثیہ نگار کیا کرتا ہے؟ مرثیہ نگار کو مرقع کشی اور جذبات نگاری کا ہنر دکھانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ کیا دکھانے کا؟ اپنے جذبات کو دکھانے کا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنے جذبات کو دکھانے کا، اور کیا ملتا ہے اسے؟ مرثیہ نگار کو موقع مل جاتا ہے۔ کس کا؟ مرقع کشی کا موقع مل جاتا ہے، خیال جذبات نگاری کا موقع مل جاتا ہے، یہ اسے موقع ملتا ہے۔ یا میں نے یہ مثال لکھی ہے، گرتے ہیں اب حسین فرش پر سے ہے غضب۔ گرتے ہیں اب حسین فرش پر سے ہے غضب، نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب۔ پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، عشق میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب۔ قرآن رحل زی سے فرش پر گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا۔ یہ بند حضرت جناب میر ببر علی انیس کے مرثیے کا بند ہے، اور وہ کہتے ہیں گرتے ہیں اب حسین فرش پر سے ہے غضب، اور نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، اور پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، اور عشق میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، اور قرآن رحل زی سے فرش پر گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا۔ یہ اس کے میننگ آپ کو بتاتا ہوا چلو گا انشاءاللہ۔ آئیے اس کا مطلب بھی ہم تھوڑی دیر بعد میں کرتے ہیں، پہلے میننگز دیکھتے ہیں، معنی دیکھتے ہیں۔ میں نے یہاں لکھ دیا ہے معنی۔ اب آئیے، شہادت کون سی زبان کا لفظ ہے؟ شہادت عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، اپنی گواہی خدا کی راہ میں۔ کہاں؟ خدا کی راہ میں، خدا کی راہ میں گواہی دینا۔ کہاں؟ اپنی گواہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں ہم۔ نرگے کون سی زبان کا لفظ ہے؟ نرگے فارسی زبان کا لفظ ہے، اور نرگے کا مطلب ہوتا ہے دشمنوں کے ہجوم میں، دشمنوں کی بھیڑ میں مجاہد کا گر جانا، یعنی بہادر کا کہاں گر جانا؟ نرگے میں، یعنی بھیڑ میں گر جانا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں مجروح کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جناب۔ مجروح کا مطلب زخمی ہونا، ٹھیک ہے، گھائل ہو جانا۔ معبود یعنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ کون سی زبان کا ہو گیا؟ عربی زبان کا لفظ ہو گیا۔ یعنی یہاں معبود سے کیا مطلب ہے؟ حقیقی خدا، اور حقیقت سے بنا ہے۔ حقیقت کا مطلب سچا خدا سے یہاں مطلب ہے۔ اور جام شہادت، اب دیکھیے جناب، جام تو ہے فارسی زبان کا لفظ،
शहादत है अरबी जबान का लफ्ज, दोनों का मीनिंग हो गया मिला करके प्याला सागर, प्याला सागर, ठीक है। पहला मीनिंग हो गया प्याला, दूसरा मतलब हो गया सागर। जाम फारसी, ठीक है। अब आइए यहां कुछ मीनिंग्स लिखे मैंने। नोश, नोश का मतलब, नोश का लफ्ज कौन सा है? नोश लफ्ज है फारसी जबान का, और नोश का मतलब होता है पीना। अब आगे आते हैं अमामा, अमामा अरबी जबान का लफ्ज है, अमामे का मतलब होता है पगड़ी जो सर पे हम बांधते हैं, ठीक है। पाए मुतहर, यहां मैं थोड़ा लिख नहीं पाया, पाए जो है ये तो है फारसी जबान का लफ्ज, ठीक है, और मुतहर है अरबी जबान का लफ्ज, और दोनों लफ्जों को मिलाकर के जब इसका मीनिंग हम निकालते हैं तो इसका मीनिंग बनता है पाक कदम। पाक कदम यहां किसके बात हो रही है? इमाम हुसैन की बात हो रही है। चलिए, जज्बात निगारी का क्या मतलब होता है? जज्बात निगारी ख्यालात को दिखाना होता है, और जज्बात कौन सी जबान का लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है, ठीक है। ख्यालात को दिखाना। उसके बाद में हुनर, हुनर फारसी जबान का लफ्ज है, ठीक है। हुनर का मतलब होता है खूबी, फन, ठीक। आगे चलें, मौका, मौका अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है खास वक्त में। और खंजर, खंजर अरबी जबान का लफ्ज है, खंजर का मतलब होता है हथियार। और यहां लिखा है मैंने जी, ये फारसी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है जीन की छोटी शक्ल। अब आइए अपन चलते हैं अपने मिसाल की जानिब चलते हैं। क्या है? गिरते हैं अब हुसैन, गिरते हैं अब हुसैन फर्श, फर्श पर से है गजब, फर्श पर से हजरत इमाम हुसैन अब अपने आखिरी वक्त में, जब करबला के मैदान में जब आप फर्श घोड़े की जी से फर्श जमीन पर आए थे, उस वक्त की कैफियत को यहां शायर ने बयान किया है, ठीक है। पाए मुतहर, निकला रकाब से पाए मुतहर निकला, सॉरी निकली रकाब पाए मुतहर से है गजब। आपका जो कदम मुबारक था, पाए कदम मुबारक, ठीक है। पाए फारसी, ये अरबी, तो पाए मुबारक कहां से निकल गया? रकाब से निकल गया। रकाब क्या है जनाब? रकाब कहते हैं घोड़े की रकाब। रिकाब कौन सी जबान का लफ्ज है? बात करते हुए चले, ये अरबी जबान का ही लफ्ज है, रिकाब भी अरबी जबान का लफ्ज है। होता क्या है? पायदान, घोड़े की जो जीन होती है, घोड़े के ऊपर जीन लगा करके फिर उसके ऊपर इंसान सवार होता है, ठीक है। तो जीन के जो लोहे के दो पांव डालने के, जिसे पायदान कहा, पांव डालने के जो जगह जो होती है उसको रिकाब कहते हैं, ठीक है। कहां से निकल गया? रिकाब से आपका कदम मुबारक निकल गया है। किसका पांव मुबारक निकल गया? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक है, वो रिकाब से निकल गया है। और पहलू शगुफ्ता हुआ खंजर से है गजब, आपका दामन शगुफ्ता चाक हो गया। किससे चाक हो गया? खंजर से, हथियार से आपके जिस्म को चाक कर दिया गया, मतलब आप जख्मी हो गए हैं, और जख्मी होकर के आप घोड़े के जी से फर्श जमीन पर गिर रहे हैं। तो ये क्या है? गजब हो रहा है, बहुत बड़ा गजब हो रहा है। कौन गिर रहा है? मुस्तफा जाने रहमत का नूरे नजर गिर रहा है। इसीलिए शायर कहता है ये सारी बातें हो रही हैं, तो क्या हो रहा है? करबला के मैदान में गजब हो रहा है, जुल्म ढाया जा रहा है। किसको गिराया जा रहा है? कौन गिर रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नवासा गिर रहा है, घोड़े की जीन से गिर रहा है। इश्क, ये भी अरबी जुबान का लफ्ज है। इश्क का मतलब इश्क में झुके अमामा, अमामा का भी मीनिंग लिखा मैंने। अमामा अरबी जुबान का लफ्ज है, यानी पगड़ी। आपके सर पे जो पगड़ी बंधी हुई थी, आप इश्क में झुक रहे हैं, मोहब्बत में झुक रहे हैं। किसकी मोहब्बत? अल्लाह की मोहब्बत में आप सजदा करने की गरज से झुक रहे हैं, तो आपका अमामा यानी पगड़ी जो सर पे बांध रखी थी वो क्या है? गिर जाती है। तो क्या हो गया है? इश्क में झुके अमामा गिरा, सर से है गजब। ये भी बहुत बड़ी बात है, सर से अमामे का गिरना, पगड़ी का गिरना, गजब वाली बात हो रही है। गजब क्यों है? क्योंकि आपने जो अमामा बांध रखा था, आपने जो पगड़ी अपने सर पे बांध रखी थी, वो आपके नाना जान किसकी? इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी थी, जो आप बांधा करते थे, वो पगड़ी आपके सर के ऊपर थी, तो वो भी गिर रही है, तो गजब हो रहा है। मानो महसूस कैसा हो रहा है? कुरान रहल से गिर पड़ा,
रहल कुरान को रखने की एक लकड़ी का बना हुआ एक हथियार होता है, जिसके ऊपर कुरान को रखा जाता है, जो मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, कुरान रहल से फर्श पर गिर पड़ा। इमाम हुसैन नहीं गिरे हैं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है, शायर का नजरिया है कि कुरान रहल से गिर पड़ा है। इमाम हुसैन घोड़े की जीन से नहीं गिरे हैं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आज खुद कलाम पाक जमीन पर गिर पड़ा है और दीवार काबा बैठ गई। यहां शायर का और नजरिया देखिए, अंदाज देखिए, वो ये कह रहा है, शायर क्या कह रहा है कि दीवार बैठ गई है। किसकी दीवार? काबातुल्लाह की जो दीवार है, इमाम हुसैन की जमीन पर गिरने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो काबातुल्लाह की जो दीवारें हैं वो बैठ गई हैं और अर्श गिर पड़ा। अर्श का मतलब आसमान गिर पड़ा। ये इसकी मुख्तसर सी तशरीह भी मैंने आप हजरात के सामने रख दी है, मीनिंग के साथ इसको मैंने लिख दिया है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट करें। नोट के साथ साथ सब्सक्राइब जनाब सबसे ज्यादा कीजिए, और आप मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला इसका आखिरी टॉपिक, उसके साथ में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला हूं। तब तक के लिए अलविदा।